بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی کی زیر صدارت سٹی کونسل کا ہنگامہ خیز اجلاس، 5 میں سے 4 قرارداد منظور کر لی گئیں۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اراکین نے ایک دوسرے پر خوب تنقیدی نشتر برسائے۔ ٹرانسجنڈر رکن شہزادی رائے کے دلچسپ جملوں نے ایوان میں کہکہے بکھیر دیے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ سٹی کونسل کے 5ویں اجلاس میں ایوان ایک بار پھر مچھلی بازار بن گیا۔ میئر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں کے ایم سی کے پارکوں کی تزئین و آرائش، ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو تمغہ کراچی بما نقد انعام دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں لگائی جانے والی مویشی منڈیوں میں فروخت کے لیے لائے گئے جانوروں پر ٹیکس وصولی سمیت سابق رکن صوبائی اسمبلی عبداللہ مراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد بھی منظور ہو گئی۔ اجلاس میں مادر ملت فاطمہ جناح علی کی برسی کی تاریخ پر خوب بحث ہوئی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کے رکن قاضی صدر الدین کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کی درخواست کی۔ سر وائنڈ اپ کے وقت ہوگا۔ اچھا میں آپ کو جلدی ختم کروں گا۔ صرف ایک درستگی کے لیے کسی کو کہیے گا کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی برسی کی تاریخ چیک کر لیجئے، وہ 9 جولائی ہے۔ جو تاریخ آپ نے کوٹ کی ہے وہ تاریخ غلط ہے۔ سر آپ ان کا یوم پیدائش جا کے دیکھیے۔ ٹرانسجنڈر رکن شہزادی رائے نے ایوان سے پہلی بار خطاب کر کے تاریخ رقم کر دی۔ شہزادی رائے کے دلچسپ جملوں سے ایوان محظوظ ہوتا رہا۔ جب ہم سیاست میں آئے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں موقع ملے گا بات کرنے کا، ہمیں موقع ملے گا اپنی بات کو رکھنے کا، لیکن یہاں سننے کو کیا ملتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں بہت خطرناک ہوں، اور ابھی ایک صاحب نے بات کی کہ مجھ سے لمبا کوئی نہیں، تو میں آپ سے لمبی ہوں سر۔ جماعت اسلامی کی جانب سے تمام خواتین ارکان میں رمضان المبارک کے موقع پر تحائف بھی دیے گئے۔ 4 قراردادوں کی منظوری کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دیا جائے۔ سندھ اسمبلی میں بھٹو کو قانونی شہید قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پیپلز پارٹی کے 4 نئے ارکان نے سندھ اسمبلی میں حلف اٹھایا۔ اجلاس کے دوران صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر صحافیوں نے احتجاج بھی کیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آدھے گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی پریس گیلری میں صحافیوں نے احتجاج کیا۔ صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام ایمن اور ناصر شاہ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم ہوا۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے نثار احمد کھوڑو، جام مہتاب، سمیتا افضال اور سادھو مل سریندر ویلسائی نے حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایوان میں قرارداد پیش کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دیا جائے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھٹو کو قانونی طور پر شہید قرار دیا جائے۔ اور جو اسمبلی اگر یہ پاس کر دیتی ہے ریزولوشن کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نیشنل ڈیموکریٹک ہیرو ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے نام کے ساتھ شہید لگایا جائے آفیشیلی، یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو امیڈیٹلی لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل ورکر جو اپنی سیاسی جدوجہد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک نشان ذوالفقار علی بھٹو ایوارڈ کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے۔ ایک سول ایوارڈ نہیں لایا جائے، جو کہ وفاق کی حکومت سے ہم ضرور یہ درخواست کریں گے کہ اس کو بھی ان سول ایوارڈز کی کیٹیگری میں رکھا جائے۔ اس قرارداد پر ایم کیو ایم کے محمد وسیم، پی ٹی آئی کے حامی آزاد ارکان سے شبیر قریشی اور جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے خطاب کرتے ہوئے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کراچی اور سندھ کے شہر، دیگر اور پاکستان کے شہر جہاں جیسا میں نے کہا بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، میں آج درد دل رکھ کر کہتا ہوں کہ ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ جس طرح پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو 4 اپریل کی تاریخ موجود ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ تاریخ اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ قرارداد کی حمایت میں تقریر کے دوران سعید غنی آبدیدہ ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب دفنانے لے گئے تھے، جناب
अभी जिक्र हुआ कि बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया आखिरी। जबकि निसार अहमद खोड़ो, इमदाद पिताफी, जमील सुमरो और दीगर अरकान ने भी खिताब किया। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने करारदाद ऐवान में पेश की, जिसको मुतफिका तौर पर तमाम जमातों के अरकान ने मंजूर कर लिया, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का गवर्नर सिंध का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, कराची। मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत मैदान में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद इमरान सोलंकी का बड़ा एक्शन। शेख रनोश की जायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुनाफाखोरों की शामत आ गई। रमजानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए वजीर आला सिंध के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने लब्बैक कह दिया। इमरान सोलंकी की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों में जाकर प्राइस चेकिंग का सिलसिला जारी। इकदामात पर शहरियों के मिले जुले रद्द अमल का इजहार। भाई अगर प्रॉपर है ये काम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब रमजान आ रहे हैं। रमजान में तो रोज की बुनियाद पे रेट बढ़ेगा। अगर आप रोज काम करेंगे ये तो शायद कामयाब हो जाए, वरना तो हम लोग बड़े नाकाम लोग हैं। कंट्रोल भाई इसी तरह किया सकते हैं, इनके पास चेक बैलेंस रखे जाए, इनके बार बार इनके रेट चेक किए जाएं, आवाम से मशवरा लिया जाए कि आपको रेट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जब भी आपको पता चलेगा कि ये सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इमरान सोलंकी ने बताया कि 2 रोज से जारी प्राइस चेकिंग मुहिम के दौरान मुताद्दिद दुकानदारों पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। रेट लिस्ट पर अमल न करने वाले मुताद्दिद दुकानदारों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। 1 लाख रुपए तक कल फाइन किए थे हमने, 12-13 शॉपकीपर्स को फाइन किया था और 10-15 को हमने वार्निंग्स भी दी थी। अभी हम निकले हैं, थोड़ी देर तक 40-50 हज़ार रुपये फ़ाइन कर चुके हैं हम लोगों को और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम ये सारी मार्केट्स घूमेंगे और जिनको वार्न करेंगे, जो वायलेटर्स बहुत ज़्यादा हैं उनको हम फ़ाइन भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दुकानें सील करेंगे और जेल भी भिजवाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने इस अज़म का इजहार किया कि रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए यौमिया बुनियादों पर प्राइस चेकिंग मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ज़िला अफसरान मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग ने समनाबाद में प्राइस चेकिंग के दौरान गिरा फरोशों पर भारी जुर्माने आयद किए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। माह सयाम में शहरियों को रिलीफ फराहमी का अज़म। जिला अफसरान ने गिरा फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हसन जफर ने समनाबाद में प्राइस चेकिंग के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। बोले, रमजानुल मुबारक में बाजारों में कंप्लेंट सेल कायम करेंगे, शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेटजी ये बनाई हुई है कि हम कंप्लेंट डेस्क वहीं पे ही कायम करेंगे मार्केट के अंदर, जो कि पीक आवर्स में जब रमज़ान के अंदर जो है वो ख़रीदारी की जाती है उस टाइम पर वो वहाँ पे मौजूद होंगे और उसी टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, रादर देन कि हम, क्योंकि एक दफ़ा हम चक्कर लगा के चलते हैं तो पीछे से दोबारा अगर वही चीज़ शुरू होती है तो उसी टाइम उनको हमने जो है ना पाबंद किया हुआ है कि वो फ़ौरन एक्शन लें बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग के साथ मौजूद अमले ने बताया कि प्राइस लिस्ट से जायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों पर 1.25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। शहरियों ने भी इस अमल को सराहा। ये तकरीबन जो है ना हमने जुर्माना 1,25,000 1.25 लाख रुपए के करीब किया है और 3 दुकानें भी सील की हैं गिरा फरोशी के खिलाफ। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम है कि आगे भी जो है ना इसको लेके चलते हैं। बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अल्लाह करे ये होती रहे, रमज़ान तक हो इंशाल्लाह अच्छी हो रही है। रमजानुल मुबारक में आवाम को मुकर्ररा निर्खों पर अशियाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए जिला अफसरान की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो शहरियों को रिलीफ मिलने के इम्कानात रोशन हैं। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। 22.5 अरब रुपए की मंजूरी, 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। 45 लाख खानदान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महकमा ज़कात 1,10,000 गरीब खानदानों को 14,000 रुपए देगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत रमज़ान मुबारक से मुतालिक बड़े फैसले। मुराद अली शाह ने रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। 22.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। 5,000 की रकम बैंक के जरिए फराम की जाएगी। 45 लाख खानदान रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। महकमा ज़कात 1,10,000 गरीब खानदानों को 14,000 रुपए देगी।
वजीर आला ने कमिश्नर कराची को आज से ज़ख़ीरे अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत कर दी। इजलास के दौरान मुराद अली शाह का कहना था कि मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। रमजान पर प्राइस कंट्रोल के लिए वजीर आला हाउस में कंप्लेंट सेंटर कायम करने का भी फैसला किया गया है। वजीर आला ने इंतजामात का खुद भी जायजा लेने का ऐलान कर दिया। इजलास के दौरान सैरो अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की हिदायत भी की गई है। इजलास में मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने गुलशन इकबाल में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगा लिया। सहूलत बाज़ार में तमाम अशिया सस्ते दामों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। रमजान में शहरियों को रिलीफ फराम करने का अज़म। गुलशन इकबाल मेन यूनिवर्सिटी रोड पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से अवाम के लिए रमजान सहूलत बाज़ार सज गया। सहूलत बाजार में दाल, चीनी, आटा, सब्जियां, फल, कपड़े, जूते समेत बहुत सा सामान मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम अवान ने कहा कि महंगाई नासूर बन गई, हर शख्स परेशान है, आवाम की सहूलत के लिए हुकूमती इक़दामात नजर नहीं आ रहे। हर शख्स को रमज़ान के अंदर सहर अफ्तार के लिए अपने दस्तरखान पे इंतज़ामात करने होते हैं, मगर तनख्वाह उतनी और महंगाई ने हर चीज़ को महंगा कर दिया है। तो इसके अंदर अगर कोई शख्स आके अपने रमज़ान की ख़रीदारी करता है तो एक घर को चंद हज़ार की प्रॉफिट जो है या बचत जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सिलसिला हमने रमज़ानुल मुबारक में मुस्तकिल जारी रखना है। कराची के हर टाउन के अंदर हमारा इसी तरह का बाज़ार लगेगा। रमज़ान सहूलत बाजार में शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अहसन इक़दाम किया। अवाम अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं, परेशान हैं और सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। इन हालात में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये रमज़ान से पहले हुस्न इक़दाम, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसको सराहता हूँ। यहाँ पर मार्केट रेट से बहुत कम प्राइस से मिल रहा है। जैसे आपके 550 वाली चीज़ वो 350 में प्राइस में दे रहे हैं। अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट नहीं ले रहे। ये सब आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के लिए रिलीफ निकाला गया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रमजान सहूलत बाजार शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सिंध और बलूचिस्तान गैस सार्फिन के लिए रमज़ान प्लान तैयार। सुई सदरन गैस ने रमज़ान में गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई जारी रहेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। रमजान मुबारक में गैस कब मिलेगी और कब नहीं, फीसद गैस कंपनी ने सिंध बलूचिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के तहत दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई जारी रहेगी। रमजान में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। गैस लोड शेडिंग रात 10 बजे से रात 3 बजे तक होगी। फीसद गैस हुक्काम ने कहा है कि सहरी और अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ये भी कहा है कि हर साल गैस की मुल्की ज़खायर में 8 से 10% तक कमी हो रही है। फीसद गैस के सिस्टम में गैस की तलब और रसद में वाज़े कमी मौजूद है। इस कमी को गैस लोड मैनेजमेंट से पूरा किया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध के महकमा बराए इंसानी हुकूक में निगरान सरकार के ख़त्म होते ही अफसरान में ठन गई है। निगरान वजीर उमर सुमरो के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन ओवैसी से अखराजात का हिसाब किताब मांगना सेक्शन ऑफिसर आशिक हुसैन अबड़ो को महंगा पड़ गया। महकमा इंसानी हुकूक के सेक्शन अफसर को वजाहती शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। महकमा इंसानी हुकूक के अफसरान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। निगरान सरकार के अहकामात पर अफसरान की आपस में ठन गई। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी से माली अखराजात की पूछ-गुछ पर अफसरान आमने सामने आ गए। निगरान सरकार के दौर में फजल हुसैन अवैसी को खत लिखना सेक्शन अफसर आशिक हुसैन अबड़ो को महंगा पड़ गया। महकमा इंसानी हुकूक ने आशिक हुसैन अबड़ो को शोकाज नोटिस जारी करके उनसे वजाहत तलब कर ली। 3 रोज के अंदर वजाहत न करने पर महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाएगी। वार्निंग दे दी गई। वजाती शोकाज में लिखा है कि जूनियर अफसर सीनियर अफसर को किस तरह खत लिख सकता है। 17 ग्रेड का अफसर 19 ग्रेड के अफसर से किस तरह माली अखराजात का हिसाब मांग सकता है। आशिक हुसैन अबड़ो ने वजाहत करते हुए बताया कि उन्होंने खत साबिक निगरान वजीर उमर सुमरो के हुक्म पर लिखा, क्योंकि निगरान वजीर इंतजामी सरबराह थे। फजल हुसैन अवैसी पर 1 करोड़ से जायद मुबैना करप्शन का इल्जाम आयद किया गया था। फजल हुसैन अवैसी को 1 हफ्ते के अंदर रकम सरकारी खजाने में वापस जमा करवाने की हिदायत की गई थी। आजाद नोडियो, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। कयूमाबाद चौरंगी के अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मजीद बताएंगे कामरान मिनहाज जी।
यूमाबाद चौरंगी में उसके ब्रिज के बिल्कुल करीब ये चौरंगी है बड़ी, इसके चारों एतराफ जो रास्ते निकलते हैं बलोच कॉलोनी, सदर, उसके अलावा कोरंगी, महमूदाबाद की जानिब रास्ते निकलते हैं। बदतरीन इस वक्त ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहाँ से कहाँ तक ट्रैफिक जाम है भाई? ये बहुत ज़्यादा जाम है। अख्तर कॉलोनी से यहाँ तक ये सारा जाम है। क्यों, वजह क्या है? क्या पता अभी, ये तो ये ट्रैफिक वाले बताएंगे, ये वाइट वर्दी वाले बताएंगे या ब्लैक वर्दी वाले बताएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम की वजह से जो है लोगों को बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार ज़रूर मौजूद हैं लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जो है कयूमाबाद चौरंगी पर ट्रैफिक इस वक्त बदतरीन जाम है। जी। शाह फैसल क्रिश्चियन कॉलोनी में झगड़े के दौरान छुरियां चल गईं। अदनान उर्फ बाबू की जान चली गई। लवाहिकीन कहते हैं कि अदनान को आशी ने कत्ल किया और फरार हो गया। मजीद जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाकया और छोटे से झगड़े ने जो है वो एक घर उजाड़ दिया, जान ले ली। उसके भाई गम से निडाल, वालिद भी गम से निडाल, पूरी इलाका जो है वो सोग में डूबा हुआ है, आओ बका कर रहे हैं। अदनान जो है वो अपने इलाके में मौजूद था और उसके कज़न से कोई किसी बात पर झगड़ा हुआ मामूली सा, और तेज़दार आला लगने से शदीद ज़ख्मी हालत में जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दौरान इलाज जो है वो जाँबार ना हो सका। उसके भाई जो है इनसे जानते हैं, आखिर मुझे बताएं वाकया क्या था, कौन था जिसने ये झगड़ा किया उसके साथ? सर वो हमारा दूर नज़दीक का रिश्तेदार था, उसके साथ बस उसकी थोड़ी सी वो ज़बान कलानी हुई, उसके चक्कर में उसने वो छुरी निकाली, उसको मार दिया। क्या नाम था उसका? कौन अक्सर यहीं रहता करीब? जी यहीं पे रहता है, ये सामने घर पे रहता है, किराएदार है वो, आशी उसका नाम है। तो मेरे भाई की 3 बेटियां, 1 बेटा है। ठीक है, मेरा भाई ने जॉब करते आज उसने छुट्टी की थी, सिर्फ क्या उसने बोला मैं आराम करूंगा, थोड़ा सा सोऊंगा, लेकिन उसकी आज पता नहीं क्या हुआ, बस ये मामला तो हो गया। क्या कहेंगे हुक्काम से की अपील कहाँ चला गया है वो? उसको पुलिस आई है, उस ताउन कर रही है? पुलिस आई है, ताउन कर रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है, उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। मौका वारदात से मुलजिम जो है वो वार करने के बाद फरार हो गया और पुलिस जो है उसकी तलाश में है, लेकिन आशी जो है जिस मुलजिम है जो जिसने वार किया, अदनान को कत्ल किया, वो इसी इलाके के रहायशी है। उसी जगह पर, उसी मुकाम पर हम जाए वक़ा पर मौजूद है। इलाका पूरा जो है वो शोक की फ़िज़ा में है। मोहल्ला है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, क्रिश्चियन आबादी है शाह फैसल नंबर 1 के अंदर, और तमाम लोग जो है वो आपस में रहते हैं और रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे के साथ इनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, कुर्ब में जो लोग आबाद हैं वो तमाम इनके जानने वाले हैं। लेकिन अफसोसनाक वाक़या, झगड़ा किस बात पे बढ़ा और क्यों झगड़ा हुआ और इतनी शिद्दत को इख्तियार की, अब तक जो है वो तमाम लोग इससे लाइल्म हैं। आपस में क्या रंजिश दोनों की, जो ये वाक़या इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। पुलिस भी तहकीकात कर रही है, जाए वक़ा से जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, ऐनी शाहिदीन के बयानात भी लिए, और मुलजिम जो फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापेमार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर 18% जनरल सेस टैक्स आयद करने के मुतालबे को सनतकारों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्की मईशत पहले ही शदीद मुश्किलात में है, अवाम मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखते हैं। IMF का मुख्तलिफ अशिया पर 18% जनरल सेल टैक्स आयद करने का मुतालबा, सनतकारों ने GST को मुस्तरद कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्क की मईशत पहले ही मुश्किलात में है, आवाम को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तरीन हो गया है। कहा कि बिजली और गैस के रेट बढ़ने से पहले ही हर कोई परेशान है। साफ कहा कि मुख्तलिफ अशिया पर 18% सेल टैक्स आयद होने से माशी सरगर्मियाँ कम हो जाएंगी। गरीब आवाम है वो खाने पीने की चीज़ों पे, पेट्रोल पे अगर 18% आप सोचें कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस से लेके और आपकी जो है वो खाने पीने की चीज़ें सब कुछ महंगी हो जाएगी। ये आवाम कैसे इसको अफोर्ड करेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपका फिर यही आएगा कि जो इन्फ्लेशन हो गई, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर जो बचा कुचा बिजनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स दहंदगान को बढ़ाना होगा, नॉन फाइलर को अब फाइलर्स बनाना होगा। कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ज़राअत की आमदनी पर टैक्स आयद करना होगा। टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें पता है टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके लिए हमें टैक्स का जो है वो अपना जो टैक्स पेयर है उनको बढ़ाना होगा, जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर बनाना होगा, जो हमारा टैक्स नेट है उसको बढ़ाना होगा। हम ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा लगा के हम ये गरीब आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डालेंगे।
एक्सपोर्टर ने कहा कि अगर पेट्रोलियम मसूनात पर 18% सेल टैक्स आयद हुआ तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से फिर शरह सूद बढ़ाने की तरफ जाना होगा। साफ कहा कि IMF का ये मुतालबा पाकिस्तान की मईशत के मसाइल मजीद बढ़ा देगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 26 पैसे कम होकर 281 रुपए 74 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 26 पैसे सस्ता हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज उतार चढ़ाव के बाद मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 53 पॉइंट्स की कमी से 65,603 की सतह पर बंद हुआ। सियासी हुकूमत कायम होने के बाद स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से दिन भर दिलचस्पी देखी गई। सोने की कीमत में मुसलसल छठे रोज बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $26 महंगा। मुकामी सतह पर 1 तोला सोने की कीमत 2750 रुपए, 10 ग्राम सोने की कीमत 2358 रुपए बढ़ गई। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $26 इजाफे के बाद फी औंस $2174 फी औंस हो गया। बैरूनी कर्ज की मद में $5 करोड़ 40 लाख की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर $7 अरब 90 करोड़ से नीचे आ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़र मुबादला ज़खायर हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में $5 करोड़ 40 लाख की अदायगी की गई, जिससे मरकजी बैंक के ज़खायर कम होकर $7 अरब 89 करोड़ रह गए। AUC वेंचर की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान नस्ल को IT सेक्टर के हवाले से रहनुमाई फराहम की गई। मुकामी होटल में मुनक़दा तकरीब में नई नस्ल को IT सेक्टर और मुलाजमतों के हवाले से मालूमात फराहम की गई, जबकि शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी पर उबूर हासिल करने के लिए ही नई नस्ल तरक्की कर सकती है। इस मौका पर AUC प्रोग्राम के CEO असदुल्ला चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, हांगकांग, मलेशिया और अमेरिका में 400 से ज़ायद वर्कशॉप्स का इनेकाद करवाया गया, जिसके बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि AUC पहले भी माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के साथ .NET टेक्नोलॉजी और रिवर्स पर प्रोवाइडर पर काम कर चुका है। तकरीब में चेयरमैन AUC डॉक्टर उस्मान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद मजीद, साबिक सदर FPCCI ज़िक्रिया उस्मान, जिब्रान जमशेद, डॉक्टर शुएब आरिफ, सैयद अब्दुल कादिर, सैयद जावेद आसिफ सिमसिम समेत मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि जदीद तालीम हासिल करके ही नई नस्ल आगे बढ़ सकती है। कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते शहर कायद से सुरीले और रिवायती परिंदे रूठ गए हैं। कराची से परिंदों के रूठने की वजूहात क्या हैं, जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में परिंदे चहचहाना भूल गए। शहर कंक्रीट के जंगल में क्या बदला, परिंदे रूठ गए। शहर कायद में चिड़ियों की चहकार, मैना और बुलबुल के सुरीले गीत मामूल की बात हुआ करते थे, मगर अब ये सुरीली आवाजें माजी का किस्सा बन चुकी हैं। शहर में जदीद तर्ज तामीर, गंदगी के ढेर और मकामी दरख्तों की कटाई ने इन परिंदों से आशियाने छीन लिए। शहर में अब अगर दिखाई देते हैं तो फिजाओं में सिर्फ चील और कौवे। इस हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक रखने वाले अशफाक अली मेमन का कहना है कि परिंदों की आबादी खत्म होने के जिम्मेदार कराची के शहरी ही हैं। शहर में दरख्तों की कमी है और हर जगह कंक्रीट भर दिया गया है, जिसके सबब कराची से परिंदे गायब हो गए हैं। आप गांव देहात में जाएंगे तो आपको हद से ज़्यादा नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ शहर है तो शहर में जो है ना वो नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, रिमेनिंग जो बाकी सारी वजूहात हैं, और जैसे कि दरख्त बहुत कम हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादातर दरख्त हो और इन्वायरमेंट अगर फेवरेबल हो तो डेफिनेटली चिड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। जो पोचर्स हैं जो पकड़ते हैं उनको हम पकड़ के उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। सर्द मुल्कों से नकल मकानी करके आने वाले मेहमान परिंदों की तादाद में भी कमी हुई है, जिसकी वजह से इन परिंदों की आबगाहों में बढ़ती हुई आलूदगी है।
माजी की बात करें तो कराची की सुबह चिड़ियाओं के चहचहाने, मैना और बुलबुल की सदाओं से सज जाती थी, मगर फिर इन हरे भरे दरख्तों की जगह कसीरुल मंजिला इमारतों के बीच ये नगमे कहीं खो से गए हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ आइमा खान, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल के तहत ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से 5वीं वुमेन कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की शिरकत, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन मुनक़िद किए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे राहील बेग। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ पर 5वीं वुमेन कॉन्फ्रेंस जारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें नूरुल हुदा शाह, मुनज़्ज़ा शमसी, इसके अलावा बहुत नाम इधर शामिल हैं, जिसमें बात की जाए बेगुल और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर औरत के मकाम को और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ना सिर्फ वुमेन कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए गए हैं, वहाँ पर थिएटर परफॉर्मेंस का भी इनेकाद किया गया है। थिएटर परफॉर्मेंस है, इसके साथ साथ क्लासिकल रक्स भी पेश किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल और जिनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है, और स्विट्ज़रलैंड से ये आई हैं, पाकिस्तान में भी मॉडलिंग करती हैं और आज इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम भी बता दें। जी, मेरा नाम है आलिया सत्तार। बिल्कुल आलिया, मुझे ये बताइए कि क्या कहेंगी पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर क्या टैलेंट दिख रही हैं? आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, पाकिस्तानी ख़वातीन कितनी खुद मुख्तार? माशाल्लाह से मैं तो सरप्राइज़ हो गई ये देखकर कि हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन माशाल्लाह हर चीज़ में अव्वल आ रही हैं। अच्छा, मैं तो स्विट्ज़रलैंड से हूँ बेसिकली, तो हमारे लिए ये था कि मतलब पाकिस्तान की औरतें घर पे ही रहती है, कुछ मतलब उनको अलाउ नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है माशाल्लाह से। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने देखा है माशाल्लाह से एक डॉक्टर है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सब कुछ है यहाँ पर। जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना है और तमाम शोबे में आपको नज़र आएंगी। और क्या कहेंगी आज का जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ख़वातीन की, जहाँ पे अज़मत की बात की जाती है, उनकी खुददारी की बात की जाती है, उनके टैलेंट की बात की जाती है, इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इस तरह के प्रोग्राम्स कितने अहम और ज़रूरी? बहुत अहम और ज़रूरी होते हैं कि औरतों को दिखाने उनकी अहमियत क्या है, उनको आगे और पुश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो औरतें ये प्रोग्राम देख रही है उनमें भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है जो कि वो अपने आप से इस हवाले से आगे जा सकते हैं। बिल्कुल जी, ये टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है और किसी भी फील्ड में ख़वातीन जाना चाहती हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद भी यही है, ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार करना, उन्हें अवेयर करना, उनकी अहमियत को बताना। और अभी क्योंकि कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है वो जारी है, कुछ सेशंस बाकी हैं, एक थिएटर पेश किया जाएगा और उसके बाद निघत चौधरी अपनी क्लासिकल परफॉर्मेंस के बाद इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। जी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।